ٹھیک ہے سو جاتی ہوں. نہیں حیا کمرے میں جا کر سونا، میرے اوپر نہیں. جاؤ اب. اوکے. حیا نے امان کو کس لیا اور بھاگ گئی. میرا پاگل بچہ. امان اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا. ولید. جی. فون دے دیں اپنا. کیا کرنا ہے؟ گیم کھیلنی ہے، بور ہو رہی ہوں. اچھا میرے ساتھ کھیل لو. سچی؟ ہاں. چلیں آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھیں اور میں آپ کو پکڑوں گی. اوکے. ولید نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو روح نے ولید کو ڈھونڈنا شروع کیا. ولید جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور روح کو آواز دی کہ یہاں پکڑو. روح جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی ولید نے اس کو خود کی طرف کھینچ کر گرا لیا. آپ نے کیوں پکڑا مجھے؟ پیار کرنے کے لیے. ہائے اللہ. چھوڑے ولید ورنہ ماروں گی. اچھا رکو میں آیا. کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز. یہ اس کا بیڈ روم تھا. آدمی کی دردناک چیخیں اسے سکون پہنچا رہی تھیں. وہ آدمی تڑپ رہا تھا اور وہ ظلم آنکھیں موندے اس کی چیخیں سن رہا تھا جیسے اسے یہ آوازیں تسکین دے رہی ہوں. وہ ایسا ہی آدمی تھا، بے حد ظلم مگر حق کے راستے پر. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پرورش ایک ایسے انسان نے اپنے مقاصد کے لیے کی جو دنیا جہاں کی برائیوں میں ملوث تھا. جانے اس کا باپ اب تک کتنی ہی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا، کتنے ہی گھر برباد کر چکا تھا، کتنے ہی نوجوانوں کو ڈرگس پر ٹلا چکا تھا، مگر اس کا بیٹا جو شاید اس کا نہ تھا بالکل اس جیسا نہ تھا. لڑکیوں کی عزت بچانے والا، لوگوں کو انصاف دینے والا، مگر وہ بے حد جابر تھا اور دردناک موت دیتا تھا. دردناک موت دیتا کہ انسان مرنے سے پہلے 100 بار مرتا. وہ 27 سال کا شہانہ مرد تھا. ہلکی سی بیئرڈ اور اس کی آنکھوں کا گرین کلر جو اسے پرکشش بناتا. بھورے بال، وحشت زدہ آنکھیں جن میں ہر وقت سرد تاثر رہتا. وہ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو جانے کتنے ہی دلوں کو دھڑکا دیتا تھا. ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے باپ سے غداری کرنے کی؟ کیسے تم نہیں جانتے تھے اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں زیان شاہ، میں نے غداری نہیں کی بلکہ سچ جان گیا ہوں اس کا. زیان شاہ؟ نہیں زیان ملک نام ہے میرا. یہی تمہاری بھول ہے زیان کہ تم ملک کی اولاد ہو. وہ ہنسا تھا اسے دیکھ کر. مگر کیوں؟ میں اپنے باپ کی ہی اولاد ہوں اور تم میرے باپ کے کتے کھایا وہی حرام کیا. نہیں زیادہ کتا بہت وفادار ہوتا ہے. میں جانتا ہوں تم بہت دردناک موت دو گے، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں. تم میرے اولاد تو علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں. مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی. تمہیں اب مرنا ہے. اس سے پہلے کہ خنجر اس کے جسم سے آر پار ہوتا وہ بول اٹھا. تم شاہوں کی اولاد ہو زیان، اور ملک کے تمہارے باپ کا قتل جیسے تم اپنا باپ مانتے ہو. زیان کو خنجر والا ہاتھ وہیں رک گیا. وہ کم خسا اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں زیان، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے. میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا. عادل شاہ کی اولاد ہو تم. ملک اسے قتل کرو اگر تمہیں اغوا کر لیا. اور وہ ملک ہر برے کام میں ملوث ہے. لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے تمہارا باپ. زیان یہ سب سن کر اس پر بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا. اور وہ تمہاری بہنوں کو لا کر وحشیوں کے آگے ڈالنے والا ہے. بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی عزت. کریم تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے گمراہ کر رہے ہو. میں نہیں جانتا ہوں یہ سچ. نہیں اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا میں. دیکھو زیان، میرے پاس وقت بہت کم ہے. ملک کی دیے گئے زخم اپنا کام دکھا رہے ہیں. میں بس تمہیں اور تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں. میرے بعد تمہیں یہ سچائی عزیز ہی بتا سکتا ہے. میری ایک بات کا یقین کرو اور اسے نہیں مارنا. اس سے پہلے کہ زیان اسے کچھ بولتا وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا. اٹھو کریم، تم مجھے اس غلط فہمی میں ڈال کر نہیں جا سکتے. ڈینگ، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لمبا سانس خارج کیا. وہ کچھ سوچ رہا تھا. وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے. دروازے کھول کر اس نے اپنے قدم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھایا. ولید مجھے کالج چھوڑ دیں. اور وہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں آج، پلیز تم ارمان سے بول دو. اوکے پھر اللہ حافظ. ارے واپس آؤ. ایسے نہیں بولتے اللہ حافظ اپنے ہسبینڈ کو. روح ولید کے پاس آئی. ولید نے اسے اٹھا کر اونچا کیا تو اس نے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے اور پھر ایسے ہی ولید نے اس کے دونوں گالوں پر بھرپور کس کی اور ہلکی سی بائٹ بھی. یہ تو ان کا معمول تھا، جیسے کہ ولید نے روح کو سکھایا تھا. ہسبینڈ کو ایسے اللہ حافظ کرنے سے ثواب ملتا ہے. اچھا اب جاؤں میں؟ ہاں جاؤ. وہ جاتے پھر مڑی. ولید پیسے تو دے دیں، میری پاکٹ منی ختم ہو گئی. اوہ میرا بچہ، یہ لو اس میں سے لے لو. ولید نے اپنے والد اسے دیا اور خود پرفیوم چھڑکنے لگا. روح نے اس میں سے پیسے نکالے اور اسے واپس کیا. روح کچھ گندا نہ کھانا، طبیعت خراب ہو جائے گی. اوکے روح، چلو تمہیں بھی کالج چھوڑ دوں. میں زارا اور حیا کو چھوڑنے جا رہا ہوں. ہاں چلیں، مجھے بھی چھوڑ دیں. میں 1 منٹ میں آئی. کہاں جا رہی ہو؟ پانی لینے. میرا بھی لیتے آنا. زارا نے اسے پیچھے سے آواز دی. اچھا
चलो तुम लोग बैठो गाड़ी में। ज़ारा आगे अरमान के साथ बैठ गई और हया और रू पीछे। मेरे साथ ही जाना वापस, ओके? पार्किंग में मेरा वेट करना तुम दोनों, और ज़ारा को मैं ले आऊँगा। ले आइएगा अरमान भाई। हम कौन सा खा रहे हैं? हम नहीं आएंगे। हाँ अरमान भाई तो ज़ारा से बात भी नहीं करने देते, जैसे कि हम इसे खा जाएंगे। हया ने भी लुक मोड़ लिया और अरमान तो इनकी बातें सुनकर मुस्कुराया जा रहा था और ज़ारा चुप बैठी थी। चलो अब आ गया कॉलेज, बाकी बातें घर जाकर करना। हया और रू गाड़ी से निकल कर अपनी क्लास की जाने पड़ गई। मैं जाऊँ क्लास में? आप तो ऑफिस जाएंगे। रुको जी, तुम रात जल्दी सो गई थी ना, तो बात करने का मौका नहीं मिला। अब करनी इधर, आओ कान करो। ज़ारा ने कान करीब करके अरमान की बात सुनना चाहिए तो अरमान ने इसका मुंह घुमाकर इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। ज़ारा की आंखें तो फटी की फटी रह गईं अरमान की हरकत पर। इसने अपने आप को आज़ाद करवाना चाहा तो अरमान को इस पर तरस आया और इसे छोड़ दिया। रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके? कितने गंदे हैं आप। मुझे पता है, अब जाओ क्लास में, आता हूँ मैं। हुर बेबी, खाना खाया आपने? नहीं। क्यों? भूख नहीं है? मैं खिलाऊं? नहीं ना, मुझे नहीं खाना। मेरे टॉयज कहाँ हैं? आपने बोला था मैं ला कर दूंगा। हाँ, मैं आज जा रहा हूँ ना दुबई, वहाँ से लेकर आऊँगा अपनी बेबी के लिए। मैं आपका बेबी हूँ ज़मान? हूर ने इसे मासूम मुंह बनाकर पूछा तो ज़मान को इस पर ढेर सारा प्यार आया। जी हूर, मेरा बेबी है। ज़मान ने गोद बाहों में लेते हुए जवाब दिया। आपने कहाँ से लिया मुझे? मैंने अल्लाह से मांगा तुम्हें। अच्छा, अब आप अल्लाह से मांगे ना, एक और बेबी हो जो मेरे साथ खेले। बेबी तो तब आएगा ना जब तुम बड़ी होगी मेरी माँ। कुछ बोला आपने? नहीं, वो मैंने कहा अल्लाह बस एक ही बेबी देते हैं, बार बार नहीं। अच्छा। वो इसके जवाब से अफसरदा हो चुकी थी और ज़मान को इस बात का दुख हुआ था। और बात सुनो, मैं मैं ना आपके लिए टॉयज लेने जा रहा हूँ, ओके? और आपने मेरे बाद मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना, और मेडिसिन भी लेनी है, ओके? ओके जी। चलो सो जाओ आप। ज़मान इसे बाहों में भरकर आंखें मूंद गया। कुछ देर बाद हुर सो गई। जब इसे यकीन हो गया कि वो सो गई है तो इसने नरमी से इसके होठों को अपने होठों में लिया और इसकी सांसें अपने अंदर उतारने लगा। इसके लबों को छोड़कर वो इसकी गर्दन की तरफ आया और वहाँ अपने लम्स छूने लगा। गर्दन से हटकर वो एक बार फिर इसके होठों को अपने कब्जे में कर चुका था। वो जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे मुँह जज्बात अब ज़्यादा देर तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो इसकी गर्दन में मुँह छुपाए सोने के लिए लेट गया। आने वाले वक्त का क्या पता वो इन्हें दोबारा ये मौका दे या ना दे। अच्छा मामा जान, हूर का ख्याल रखिएगा। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास अमानत है मेरी। अरमान बेटा बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपनी बेटी का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूंगी। और जल्दी वापस आ जाना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर नहीं रहेगी वो। जी अम्मी, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। ओके बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। ज़मान गाड़ी में बैठने ही वाला था कि इसे पीछे से ज़मान की आवाज़ आई। ज़मान, हाँ, कहाँ जा रहे हो? वो मेरी फ़्लाइट है 2 बजे की, एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, वापस कब आओगे? परसों। अच्छा, तुम क्यों पूछ रही हो? जमल को सोच में पड़ गई कि ज़मान ने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। ओके, अल्लाह हाफिज। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा, और इसकी सिसकियाँ गूंज रही थीं। पता नहीं कितने देर में इसे कैद में रखा गया था और कब तक इसे रिहाई मिलेगी वो नहीं जानती थी। वो मासूम चिड़िया ना जाने कब किसका शिकार बनी और इसकी अगली जिंदगी कैसे कटेगी वो नहीं जानती थी। इसका नाम सुबह चूर था, से चूर था और प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने अपनी आधी आंख खोलकर देखा तो वह जोत कोई सामने इसकी तरफ बढ़ रहा था। जयान ने लाइट्स ऑन की तो सामने ही एक 17 साल का लड़की बेजान सी पड़ी थी। वो इसकी तरफ बढ़ा और अमर को लगा आज फिर इसे मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले इसने इस इंसान को नहीं देखा था। जवान ने इसके पास जयान के पास आ गया तो अमर की आवाज़ सुनाई दी। पानी पानी दे दें प्लीज़। जयान ने पानी का गिलास उठाया और इसे पिलाया। अमर थोड़ी होश में आई। इसके सामने एक अजनबी बैठा था। प्लीज़ आप मुझे मत मारना। वो कल अंकल ने मुझे बहुत मारा था, बिल्कुल, बल्कि रोज़ ही मारते हैं, कोई ना कोई मारता है। जयान के पैरों तले सीधा ज़मीन निकल गई और इसने अमर को पहचाना था। अमर जयान को एक शॉपिंग मॉल में भी थी। वहीं वो अपने साथ ही जैन का चैन सब कुछ ले जा चुकी थी, मगर कुछ अरसे वो गायब थी। गायब हो गई। जया ने इसे बहुत ढूंढा मगर इसका पता न चला, मगर वो नहीं चाहता था कि वो इसके ही घर इसके बाप की कैद में होगी। अमर, तुम यहाँ कैसे? आप मुझे जानते हैं? हाँ। तुम्हें याद नहीं? हम मॉल में मिले थे। हाँ, याद आ गया। तुम यहाँ कैसे आई और ये हालत कैसी तुम्हारी?
वो एक अंकल ने मेरे मामा बाबा को मार दिया और मुझे उठाकर यहाँ ले आए। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। वो मुझे सब बहुत मारते हैं। तुमने इस इंसान को देखा है जिसने तुम्हारे मामा को मारा? जी देखा है। इसके हाथ पर एक निशान था। जैन को पहली फुर्सत में उनका ख्याल आया। इसने अपने फ़ोन में से अपने बाप की तस्वीर अमर को दिखाई। यही वो था? जी यही था। इसने मारा, मेरे बाबा को मार दिया। वो फूट फूट कर रो रही थी। अच्छा चुप, देखो हमें यहाँ से निकलना है। अच्छा चुप रहना। अमर की हालत चलने के काबिल ना थी, इसलिए जया ने इसे अपने बातों में उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। घर में इस वक्त कोई न था और बाहर भी गार्ड्स शायद कहीं गए हुए थे, इसलिए सबकी नजरों से बचते हुए अमर को गाड़ी में लटाया और वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी मुल्क हाउस से निकल चुकी थी और यहीं से शुरू हुई मुल्क की बर्बादी। आपा ये देखें कैसा सेट है। मैं रू और हूर को दूंगी एक जैसा ही इनकी रुखसती पर। हमारा तुम माँ हो इनकी, तो तुम इनको जो भी दोगी सब अच्छा होगा। आफिया जमान कब आएगा? हूर बहुत जिद कर रही थी। बहुत मुश्किल से सोई है। बस उजना आपा रात तक आ जाएगा। अच्छा चलो हमारा ये सब समेटो, खाने की तैयारी करते हैं। वहाँ मामी, वाह मामी ये किसके लिए? बेटा ये हूर का है, इसकी शादी कर दूंगी इसे। नहीं ये तो मैं लूंगी, मुझे अच्छा लगा ये सेट। नहीं बेटा ये हमारा नहीं बेटा ये हमारा ने हूर के लिए बनाया है और आपको और दिलवा दूंगी। नहीं आफे मामी ये मैं यही लूंगी। तुम्हें नहीं समझ आ रही, ये तुम्हारे लिए नहीं है जमन, तुम नहीं ले सकती। उसमें क्यों डांट रही हो बच्ची को? एक ही सेट की तो बात है। तहरीम यहाँ ये हूर का है ना? इसकी माँ ने बनवाया है। इस पर सिर्फ हूर कहा गया। उजना बेगम ने जोर सिर्फ पर जोर देकर अच्छा खासा गुस्से में सुनाया था तहरीम को। तो क्या हुआ हमारा और बनवा देंगी अपनी बेटी के लिए, तो सिर्फ मेरी बेटी पर सजेगा। अच्छा अच्छा जोड़े आप दे दें ये जमन को, मैं हूर के लिए और बनवा लूंगी। जमन और इसकी माँ सेठ कर जा चुकी थी। ये तहरीर और उसकी बेटी आजकल ज्यादा ही चढ़ कर रह रही हैं। जी उस्मा का अब ऐसा ही है। अम्मारों को बहुत दुख हुआ था क्योंकि वो सेट आदिल शाह ने बनाया था होली की पैदाइश पर, इसलिए वो चुप बैठी थी। अम्मारा टेंशन नहीं लो, मैं वाली से कहूंगी हो जाएगा। न्यू ज्वेलर्स के पास आखिर भाई होगा। भाई के नाम पर अम्मारा की आंखों में आंसू आए थे और कुछ ख्याल भी। अभी तो सिर्फ सेट छीना है ना, किसी दिन तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बल्कि तुम्हारा क्या है, यहाँ सब मेरा ही है। तुमने डाका डालकर बैठी हुई हो। क्या कह रही है जमन? आप छोड़े मेरा बाजू, मुझे चॉकलेट लेना है। चॉकलेट की जगह जहर खा लो और जान छोड़ो मेरे जमान की। क्या कहा? जमान वो आ गए, मुझे मिले भी नहीं। जमान 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 कहाँ है आप? आए? चुप कर। अब जबान से जमान का नाम लिया तो देख लेना, काट कर हाथ में फेर लूंगी, पकड़ा दूंगी। जमल तो हूर को धक्का दे कर जा रही थी, लेकिन जमल का बाजू दरवाजे के हैंडल से टकराकर साथ लगा तो दर्द की जबरदस्त लहर दौड़ी इसके जिस्म से। आह बहुत गंदी है ये। सयान को मैं जमान को मैं शिकायत लगाऊंगी। सईद जल्दी आ जाए आप। हूर बेटा यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? बड़ी मामा ये संभल। मामी जान कुछ नहीं हुआ, इसे ये गिर गई थी, देखा मैंने। अच्छा चलो रू बेटा बहन को अंदर ले जाओ। जी मामी। आज तो ये हूर की बच्ची ने भांडा फोड़ देना था। वो तो शुक्र है कि मैं आ गई। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको जल्द ही। ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मैं को जगह ले जा रहा हूँ। फिक्र नहीं करो, वो तुम तक नहीं पहुँचेंगे। वो अब आपको मार देंगे। आप मुझे वहाँ से निकाल ले आए हैं इसलिए। जया ने इस मासूम लड़की की तरफ गौर से देखा जो सामने देखते हुए उंगलियां मरोड़ रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है या अपना डर लग रहा है? नहीं आपका, आपकी फिक्र हो रही है। वो आपको मार देंगे, आप मेरी वजह से मारे जाएंगे। किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कोई मुझे हाथ लगा सके। मैं जयान हूँ, अमर नहीं जो किसी के कहने चुप करके बैठी रहे। तो क्या मैं वहाँ डांस करती? हाथ पाँव बंधे हुए थे मेरे। आप ही होते तो आप ही रोते। अच्छा चलो उतरो, आ गया घर। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आप मुझे आवाज कर ले आए क्या? बेवकूफ, अगर आवाज ही करना था तो वहाँ से क्यों लाता? लेकिन अगर तुम ज्यादा बोली तो ऐसा सोच भी सकता हूँ। चलो अब जयान अमर को लेकर अपने फार्म हाउस आया था, जिसका मुंह कभी पता नहीं था। वो अमर को महफूज करने अपने बाप के मुतालिक तफ्तीश करना चाहता था। यहाँ मुकम्मल अंधेरा था, जैसे कभी रोशनी का गुजर हुआ ही ना हो। मुझे डर लग रहा है। अमर जयान के बाजू के साथ चिपक गई थी क्योंकि इसे अंधेरे से डर लगता है। मैं साथ हूँ ना, कुछ नहीं होता। फिर भी मुझे डर लग रहा है। अमर चुप करो, पता नहीं मेरा अब क्या होगा। अमर ने मुंह नहीं बोला था। अमर ने मुंह नहीं बोला था। तुम्हारा क्या होगा? अब जया ने अंधेरे में इसके वजूद को देख कर सोचा। वो खिड़ वो खिड़की फांक कर कमरे में आया था। कमरे में हल्की लैंप की रोशनी में इसकी फैरी किसी नन्हे बच्ची की तरह तकिए को हक करके सो रही थी। इस इसे दूर से देखकर दिल ने करीब से देखने और महसूस करने की कोशिश की और बेइख्तियार इसके चेहरे पर झुक गया। इसके नर्म मुलायम होठों को अपने होठों में लिया और अपने होठों पर किसी का नर्म गर्म लम्स पाकर इसकी आंख खुली। जमान, ये आवाज जमान की मुंह में ही दब चुकी थी।
खुद को अच्छे से सैराब करने के बाद ज़मान पीछे हटा और हूर के माथे पर लब रखे। हूर जल्दी से ज़मान के गले लग गई। ज़मान, आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे सबने डांटा और दादाजान ने भी। ज़मान तो इसकी झूठ पर हैरान रह गया क्योंकि दादाजान तो ज़मान के साथ थी ना, लेकिन इसे खुशी इस बात की थी कि इसकी फेरी ने इसे मिस किया। ज़मान, अचानक इसकी आवाज़ फिर आई थी। क्या हुआ हूर? ज़मान, आपने तो कहा था कि मैं आपका बेबी हूँ। आपने मुझे अल्लाह से मांगा था, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? आपको पता है ज़मान ने मुझे धक्का दिया था और मेरे बाजू पर चोट आई है। देखें। वो अपनी शर्ट उठाकर ज़मान को अपनी चोट दिखा रही थी और ज़मान के अंदर तूफान उठ रहे थे कि इसकी जिंदगी को किसी ने छुआ था, जिसको सिर्फ हूर की गुर्बत ने काबू किया हुआ था। मेरी जान, बस चुप। मैं सुबह पूछूंगा कि किसने मेरी बेबी को डांटा था। ज़मान इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। वो तो इसे सरप्राइज़ देने वाला था आज, लेकिन वो खुद सरप्राइज़ हो गया था। बहुत सी बातें इसके दिमाग में आ रही थीं हूर के मुतल्लिक। हैप्पी बर्थडे स्वीटी। ज़मान ने इसके कान की लो चूम कर इसके कान में सरगोशी की। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मुझे उम्मीद है अगली सालगिरह हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के तौर पर मनाएंगे। हूर इसके आगोश में सो चुकी थी। ज़मान ने इसे बेड पर लेटा दिया और इसके गले में अपने नाम का लॉकेट पहना दिया और झुककर इसके लब रखे इस पर लब रखे। इसका दिल मज़ीद गुस्ताखियाँ करने पर उकसा रहा था, मगर वो खुद को रोके हुए था मज़ीद कुछ वक्त के लिए। रूह सोई हुई थी कि इसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ। इसने आंखें खोलने की कोशिश की तो इसकी आंखों पर किसी ने काला कपड़ा बांधा हुआ था। कोई इसके नाजुक वजूद पर मुकम्मल काबिज था। कौन कौन है? कोई जवाब नहीं आया। किसी की गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थी। कौन है? वलीद, कहाँ हैं आप? ऐसे फिर जवाब खामोशी में ही मिला। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इसके ऊपर से बोझ हटा और इसने अपने आप को किसी के बाजुओं में महसूस किया। इसे खुशबू तो वली की ही आ रही थी, लेकिन इसके नन्हे दिमाग में ये था कि वलीद ऐसा क्यों करेगा। वलीद ने इसे नीचे खड़ा किया और इसकी आंखों से पट्टी हटा दी। पूरे कमरे गुब्बारों और फूलों से सजाया हुआ था और कमरे के दरमियान एक केक पड़ा था। अभी रूह कमरा देख रही थी कि वलीद ने इसे पीछे से हक किया। हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। इसके कान की लो को दांतों में दबाकर इसके कान में सरगोशी की। लो को बिल्कुल एक ख्वाब लग रहा था। वली, ये सच्ची है? नहीं, ख्वाब है। मुझे भी लग रहा है। अच्छा, ख्वाब से बाहर निकालो तुम्हें। नहीं, इतना अच्छा तो ख्वाब है और पागल हकीकत है। वलीद ने रूह की गर्दन पर लग रखी तो रूह को एहसास हुआ कि वो वली के कितने पास है। वली ने, ये सब आपने किया? हाँ। सब मेरे लिए क्या? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे थैंक यू तो बोलो। थैंक्स, बस ऐसे रोका थैंक्स, रूखा सा थैंक्स। और कैसे? ऐसे। वलीद ने इसकी गर्दन में मुंह छुपाकर इसकी गर्दन को छूना, लेकिन यहाँ तक कि रूह की गर्दन बिल्कुल सुर्ख हो गई थी। वली, अब क्या गर्दन खाएंगे? छोड़े मुझे, ये खाना है। अच्छा आओ, खाते हैं, फिर गिफ्ट भी दूंगा। वलीद रूह का हाथ पकड़कर इसे टेबल की तरफ ले आया और इसका हाथ पकड़कर केक काटा। केक का एक टुकड़ा उठाकर रूह को खिलाया। अब मेरी बारी, चलो खिलाओ मुझे। आप नीचे हो आप नीचे होना, फिर मैं आपके मुंह में केक डालूंगी। नहीं, मुझे हाथ से नहीं खाना। फिर कैसे खाना है? होठों से। नहीं वलीद, पहले ही मेरी गर्दन पर जलन हो रही है। अब आप मेरे लिप्स भी खा जाएंगे। तो मैंने तुम्हें केक खिलाया ना, अब तुम मुझे खिलाओ। हाँ तो केक खाए ना फिर। हाँ, केक ही खाऊंगा ना, लेकिन अपनी पसंद का। वलीद वलीद ने रूह को पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद इसको बाहों में लेकर इसके साथ ही बैठा। वली, नहीं प्लीज, मैं तो खा जाऊंगा अपनी बेबी को। वली प्लीज। रूह चुप। वली ने नरमी से रूह के होठों पर अपने लब रखे। वो इसके होठों से अपनी तशनीगी मिटाने में मसरूफ था, इस बात से बेखबर कि कल क्या होने वाला है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हूर को हाथ लगाने की? मैंने क्या किया? धक्का क्यों दिया इसे? इसे चोट लगी है। इसे जानती हो समान शाह की जिंदगी को हाथ लगाने वाले का अंजाम क्या होता है? मैंने नहीं दिया धक्का इसे। ओ, जबान बंद रखो, सब जानता हूँ मैं। और हाँ, एक बात की दुआ करो कि जो मैं करने जा रहा हूँ, मैंने तुम्हारा कोई लंग ना इसमें कोई लिंक ना हो तुम्हारा, वरना अंजाम देख लेना। मैं समझ। क्या? कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? चल जाएगा पता। ज़मान इसे वहीं छोड़कर जा चुका था, मगर हाय ये किस्मत। अरमान भाई, हम सब ने शॉपिंग करनी है, आप चलें हमारे साथ। वलीद से कहो ना रूह। वो तो चले गए कहीं। अमान कहाँ है? वो भी दफ्तर है। अच्छा चलो। किस किसने जाना है? मैंने और ज़ारा और आया। और शॉपिंग किस बात की करनी है? वो अमान भाई का निकाह है ना, इसलिए। अच्छा जी, चलें अब। अरमान। जी जान। अरमान। हेलो। कौन? समल। हाँ बोलो।
तुम्हारा शिकार घर से निकल चुका है, शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे हैं वो लोग। आप अब आगे तुम्हारा काम है पूरा करना। याद रखना मैं जमल हूँ, अगर मुझे मेरा टारगेट ना मिला तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। अरे लड़की, मुल्क को धमकी देना बंद करो। जानती नहीं मुझे कच्ची कली को मसलने में टाइम नहीं लगता। चलो वक्त आने पर देखेंगे कौन किसे मसलता है। अभी तो तुम होर और रू का काम तमाम करो। जाबिर, ये फोन बंद कर और गाड़ी निकाल। आज फिर 16 साल पहले वाला दिन आएगा। आज फिर मैं आदिल की इज्जत कुचलूंगा। हा 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 हा। ये जयान कहाँ है? इतने दिन से नजर नहीं आया। पता नहीं साहब कहाँ गायब है वो। चलो इसे कॉल करके बुलाओ घर। जमल ने अरमान को लोगों को शॉपिंग पर जाते हुए देख लिया था। वो समझ रही थी कि होर भी इन लोगों के साथ गई है, मगर अफसोस होर इस बार बच गई और इसका खमियाजा इसकी बहन भुगतेगी। हाँ जाबिर, कहाँ? क्या खबर है? भाई वो साहब किसी आदिल शाह की इज्जत को कुचलने की बात कर रहे थे। क्या क्या है इस वक्त? वो निकल गए हैं, घर से शॉपिंग मॉल की तरफ गए हैं। चलो फिर। ओके। मैं तो मैं तो लगाऊंगी अपनी भी होर के लिए भी। ये तो अमान के साथ शॉपिंग करूंगी, वो आएंगी। तो तुम आज क्या करने आई हो हमारे साथ? वो तो मैं बस वैसे ही आई हूँ। अमान ने कहा था खुद कर दूंगा मैं खुद कर दूंगा ड्रेस। अब मैं खुद कैसे लूँ? भला वो तो नाराज हो जाएंगे। हया की शर्माने की एक्टिंग से गाड़ी में भरपूर कहका गूंजा था। चलो लेडीज, अब बस करो और चलो नीचे। शॉपिंग करके मुझे कॉल कर देना। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। ओके ओके अरमान भाई, मैं कर दूंगी कॉल। ओके, ख्याल रखना एक दूसरे का। ज़ारा गाड़ी से निकलने लगी और अरमान ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। जी, ब्लैक ड्रेस लेना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जब पास तो आओ। क्यों? मीठा खाना है? अरमान, हम पब्लिक प्लेस में हैं। कोई बात नहीं, पास आओ जल्दी। अरमान प्लीज। अरमान ने ज़ारा का बाजू खींचकर इसे खुद के करीब किया और नरमी से इसके होठों पर होंठ रखे। इसके नर्म गर्म लम्स से ज़ारा की जान हवा हुई थी। अगले ही लम्हे वो इससे दूर हुई। अरमान, आप बहुत गंदे हैं। अच्छा, घर आकर बताना। अब जाओ, अल्लाह हाफिज। अरमान, हया, ज़ारा और रू को छोड़कर दफ्तर चला गया। अभी वो शॉपिंग कर ही रहे थे कि रू को महसूस हुआ कि जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। हया हया हूँ, वापस चले, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता रू, तुम्हें वलीद भाई ने ज्यादा ही डरपोक बना दिया है। हया और ज़ारा अपनी ड्रेस देखने लग गई, लेकिन रू को अभी तक डर लग रहा था। किसी की नजरें अपनी पश्त पर महसूस हो रही थी। ज़ारा, चलो यहाँ से। क्या हुआ रू? बस चलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे महसूस हुआ है। चलो प्लीज यहाँ से। अच्छा चलो चलते हैं। ज़ारा, एक मिनट, मेरा सूट शॉप में ही रह गया। तुम और रू यहाँ खड़े हो, मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना प्लीज। तुम अरमान को कॉल करो ना, जल्दी आए वो। ज़ारा बार बार अरमान को कॉल कर रही थी, लेकिन अरमान का नंबर बंद आ रहा था और हया भी अभी तक नहीं आई थी। और इधर से मुल्क के बंदे भी इनका ताक़ुब कर रहे थे। हाँ जाबिर, मुल्क साहब, एक लड़की है, कोई इसकी हम शक्ल नहीं, और इसे देख कर नहीं लगता कि इसे कोई बीमारी होगी। मतलब इसकी एक बेटी आई है। साथ कौन है? जी, दो लड़कियां हैं। जी, दो लड़कियां और हैं। वो दो पार्किंग एरिया में है और एक अंदर गई है। बस फिर इन दोनों को उठा लो, और अगर ना ला सके तो मार देना। जो हुक्म साहब। बस आज थोड़ा इंतजार और फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आने वाली है। वो खबासत से हंसा। दो आदमी ज़ारा और होर की तरफ मुड़ रहे थे और वो दोनों इस बात से अनजान थीं। होर पुत्र, जी मम्मी। आज अब बच्चे तेरे सर में तेल डालूं? नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मुझे बहुत गंदा लगता है। मुझे नहीं लगाना तेल। बेटा, इससे सर दर्द को आराम मिलता है। बेटे लगवा लो। फिर चॉकलेट दूंगी अपने पुत्र को। नहीं लगाना मुझे मम्मी। जी को बुला दें प्लीज। पुत्र जमान तो कहीं गया हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन जी ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ खेलेंगे और मुझे सुनाएंगे। तो तू आ जा पुत्र, मैं सुनाऊंगी। नहीं मम्मी, बुलाए ना जी को। मेरे सर को मेरे सर दर्द कर रहा है। अच्छा पुत्र, बुलाती हूँ।